Hello students, how are you? Today we are going to start new topic from your chapter 3 matrices of standard 12. Equality of matrices. टू मैट्रिक्स आपको दिए हैं वो इक्वल कब होंगे? So the matrix, suppose we have the two matrices. One is A is Aij. I'm not writing the order of this matrix here, and this matrix B is Bij are said to be equal. Are said to be equal. Our topic is to give the definition of equality of two matrices. So these are equal if order of both matrices are equal, or you can say same. First thing, you have to see the order of both the matrix, that should be same. And the second thing, all corresponding elements of both matrices should be same or equal. What is meaning two matrices are given? When can we say the two matrices are equal? First thing, their order must be same. Number of rows and columns of first matrix should be same as the number of rows and matrix of the second matrix. And the second thing, the corresponding elements must be same, equal. So here in this case, here suppose Aij is M cross N matrix, then our matrix B should be M cross N. Okay, the first thing, this is my first thing. The second thing, Aij is equal to Bij for all I and j. Okay, so corresponding elements must be equal. So A11 of this matrix must be the B1 same as the B11 of the second matrix. A12 इस मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का B12 एलिमेंट सेम होना चाहिए. Corresponding elements है वो सेम होना चाहिए. Then we can say the both matrices are equal. Okay. In the other way, if it is given in our question that two matrices are equal, then what is meaning? Their orders are same and the corresponding elements are also same. Okay, copy down this and we shall take one example. From that example, you will get the proper idea. Suppose from your textbook only I am taking this example. We have the example 4 of your textbook. If it is given in the question x plus 3 z plus 4 to y minus 7 minus 6 a minus 1 is equal and 0 b minus 3 minus 2 21 0 is equal to 0 6 3 y minus 2 minus 6 minus 3 2c c plus 2 and 2b plus 4 minus 21 0. What is my question? Find values of A, B, C, X,
वाई जेड। अभी मैंने कहा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उसके ऑर्डर सेम होंगे और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे। और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हम लिखते हैं वी राइट मैट्रिक्स A is equal to matrix B if A and B are equal matrix। अगर दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो हम लिखते हैं A is equal to B। Okay, in this case what is given? This one matrix is given to you। Okay, one matrix is given to you and this is equal to this second matrix, and I want to find the value of A, B, C, X, Y, Z. Okay, now it is given that these two matrices are equal. This is the symbol of equality, sorry. So corresponding elements are equal. So this is the first element, A11 is equal to B11। first element, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है वो इसके भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होगा। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है z प्लस 2 और इस साइड क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 6, सो इट इज इक्वल टू 6। The third one is 2y minus 7 is equal to 3y minus 2y. Now you can easily compare the first row and third column का जो ये element है वो इस matrix के भी first row और third column के element से equal होंगे। So corresponding element equal है, लेकिन गुजराती में बोलिए तो अनुरूप घटकों समान होवा જોઈએ। Okay, the પછી આગળ then this one is -6, this is also the -6। here the second row, second column A22 element is A minus 1 and here the second row and second column the element is -3। this must be equal। then this is 0 and this is 2c by 2, second row third column the element is 0 and in this case second row third column your element is 2c plus 2। again this is third row first column element is b minus 3, in this case third row first column element is 2b। अनुरूप घटको આપણે સમાન હોવા જોઈએ કેમ કે બે મેટ્રિક્સ two matrices are given same equal। So the next one -21, 0 and 0, so no problem। So from this you can say x is -3, from this you can say take 2 on this side, so 6 minus 2 is 4। from this you can find this is 2y minus 3y is equal to -2 plus 7। ये 3y को ब्रिज क्रॉस करवा के इस साइड ले गए तो 3y पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। 2y minus 3y is -2 plus 7 and from this you will get 2y minus 3y is -y, है ना, and this is 5। so -y is 5 implies y is -5। okay, the first answer x is equal to -3, z is 4 and y is -3। from this you can write the value of a is -3, ब्रिज क्रॉस करवाओगे तो -1 का हो जाएगा +1, so a is -2। this is your fourth value। then the fifth one, from this you can say 2c ब्रिज क्रॉस करवाओगे it is -2। now this is in the multiplication में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, c is -2 by 2 और c is 1। so this by this way you got the value of c। now here
2b को इस साइड ले लो या तो इस साइड ले लो, लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सपोज आई टेक दिस ऑन द राइट साइड, so 2b minus b, and this 4 I will take on this side, so minus 7, minus 3 minus 4. So I have 2b minus b is b, minus 3 minus 4 is minus 7. So these are the values of AB. This type of example can be asked in MCQ. Copy down this example. Let us take the another example. Here in equation, see students, here in the equation z plus 4 is 6. I have written here, this is 2, but it is 4. So z4 plus 4 is 6. And from this, you will get the value of z. Z is equal to 6 minus 4 is 2. Please correct it. चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 5 है. हियर ऑल्सो आपको बोला गया है ए बी सी एंड डी फाइंड करो. ओके, one matrix, this is your first matrix, this is your second matrix, and between these two matrices there is a sign of equality. Meaning is that the two matrices are equal. Okay, the first thing is the clear, this is a 2 by 2 matrices and matrix, and this is also the 2 by 2 matrix. Okay, the second thing, two matrix equal होते हैं तो उसके corresponding elements भी equal होंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि 2a plus b is equal to 4. First element of this and first element of this, and the second one is a minus 2b is equal to minus 3. First row, second element a12, and here a12 is minus 3. Okay, and second is 5c minus d. Second row, first column element here. Second row, first column element is 11. अनुरूप जो घटक है, एलिमेंट है, वो इक्वल होना चाहिए. बराबर. सो दिस इज योर 4c plus 3d. इट इज इन द सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट. यहाँ पे सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 24. आवर इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. So here we have equations, 4 equations. ये दो इक्वेशन है वो ए बी है, एलिमेंट इसमें ए बी है अननोन, और इस केस में सी एंड डी अननोन है. सो फॉर 2 अननोन वी वांट 2 इक्वेशंस, एंड हियर वी हैव 2 इक्वेशंस है ही ऑलरेडी. सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. वी विल यूज elimination method. You can use substitution method, or you can use Cramer's rule. Whatever you want to use, you can use. But the elimination method is very easy. I will multiply it with 2. So multiplying this with 2, we will get 4a plus 2b is 8, and adding in this one. Okay, suppose I give this as number 1, number 2. So I am multiplying 1 with 2 and adding in 2. Okay, so इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे ये b का जो कोएफिशिएंट है उसको मुझे इक्वल बनाना है. इसका इधर b का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2b बन जाएगा, और ऐड करूँगी क्योंकि देखो इसमें ऑपोजिट साइन है तो कट हो जाएगा. सो इट इज़ 4a plus 2b is 8. नाउ एडिंग दिस 2, हियर इज a minus 2b. ऐड करने से ये दोनों कट हो गए. 4a plus a is 5a, and here 8 minus 3 is 5. So from this you will get a is equal to 5 upon 5, 1. a 1 मिल गया. अब आराम से आप b ढूंढ पाओगे. 2a plus b is 4.
ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं और या तो सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं। 2a + b = 4, उसमें आप a की वैल्यू डाल दो। सो b = 2 1 2 और ब्रीच क्रॉस करवाएंगे, 2 इस साइड जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सो b = 2. So this is your value of b. Similarly, here also now you got the idea. मुझे ये एलिमेंट फाइंड करना है। सपोज ये इक्वेशन 3 है, ये 4 है। सपोज आपको d के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है, ये 3 है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। सो ये दोनों इक्वल कोएफिशिएंट बन जाएंगे और ऑपोजिट साइन है तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगी। So multiplying equation 3 by 3 and adding in 4. So I will get 5 3s are 15. C minus 3d is equal to 33 and 4c plus 3d is equal to 24. आपको कोई भी अननोन, एक अननोन के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है और फिर उसमें ऑपोजिट साइन लाने के लिए आइदर आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा, वो आपको देखना है। सो दिस कैंसर 15c + 14c is 19c and this is 7 + 5 57. सो आपको c मिल जाएगा 57/19 दैट इज 3। आपका c रेडी हो गया 3। अब आप कोई भी इक्वेशन के अंदर रख के वैल्यू फाइंड कर सकोगे। सपोज इक्वेशन 4 में मैं रखती हूँ c is 3, so 4 into 3 plus 3d is 24, so 3d is 24 minus 12, so 3d is 12 and d is 12/3 यानी 4। सो आपकी ये 4 वैल्यू आपकी रेडी हो गई। a is 1, b is 2, c is 3 and d is 4. Copy down please. अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में से हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का ही है। द क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, 2 मैट्रिक्स आर गिवन टू यू and there is equality sign between them, meaning is that their corresponding elements are equal. So you can see this is 4 with y, so 4 is equal to y or y is equal to 4. 3 with z, so z is equal to 3. X with 1, so x is 1 and 5 with 5. So we have the value of y is 4, value of z is 3 and value of x is 1. Corresponding elements, जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं और वो 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी के सिंबल है, इसका मतलब ये हुआ आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वेट करना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको इक्वल साइन से लिखना है। ओके, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट 4 है और यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो y है। सो y is equal to 4. You can directly write the answer here in this case. Second case, now you got the idea. 2 matrices are equal, that means their corresponding elements are equal. So the first element x plus y must be equal to the 6. ये इसके साथ इक्वेट होगा। 2 तो 2 के साथ है, अननोन है ही नहीं तो हमको फाइंड करना है। Here 5 plus z is equal to, here we have 5 and the next one x y is equal to 8. Okay, now you can see that this is 5 plus z is 5. So bring this cross this 5, this bridge cross करवा दो तो आपका 5 minus 5 हो जाएगा
जब ब्रिज क्रॉस करवाते हो तो लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, तब ये प्लस वाला माइनस बन जाता है, उसकी साइन है वो चेंज हो जाती है. सो योर आंसर ऑफ Z इज 0. Now our aim is to find x and y. Okay, so we have two things. One is x plus y is 6 and second one is xy is 8. क्या करोगे आप आइदर इसमें से x या y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दोगे, या तो x या y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दोगे. यही काम आपको करना है. कोई भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखना है, जिससे हमारा वो इक्वेशन जो है वो पूरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, एक ही अननोन में कन्वर्ट हो जाए. सो यहाँ पे मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ 6 माइनस एक्स. इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ. समझ में आया? या तो आप x की वैल्यू ढूंढ के इसमें रखो, बराबर दूसरे इक्वेशन में रखनी है. तो दिस इज x, y की जगह रखा मैंने 6 माइनस एक्स इज 8. सो इट इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज 8. ओके, पूरा जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम फाइंड करेंगे. सो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको राइट साइड भेजूंगी तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर. इसको भी राइट साइड बन जाऊंगी तो ये प्लस है, वो बन जाएगा माइनस. और 8 तो राइट साइड है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म मुझे पॉजिटिव बनाना है. तो मैंने क्या किया, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया. तो ये माइनस है वो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा. ये प्लस वाला है इस साइड हो जाएगा माइनस में, और 8 तो वो राइट साइड था. ओके, नाउ फैक्टराइज दिस. इसके फैक्टर बनाना है. ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और ये 8 के ऐसे पार्ट बनाओ कि उसको प्लस या माइनस करने से 6 आए. तो क्या होगा, 4 2 8. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज 0. ओके, 4 2 8 and 4 plus 2 is 6. I want minus 6. तो मैंने दोनों जगह माइनस साइन लगाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4. माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिए तो अंदर माइनस हो जाएगा. सो वी हैव x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब आइदर ये 0 होगा या तो x माइनस 4 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे. ओके, फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2. यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी -4 को उस साइड ले जाओगे तो +4 वैल्यू मिल गई. अब क्या करना है, आपको y की वैल्यू ढूंढना है यहाँ से. ओके, y इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस एक्स. सो आपको y मिलेगा 6 माइनस 2 इज 4. y कितना मिला, 4. जब x 2 मिला तो y 4 मिला. अब यहाँ पे x 4 मिला है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4. तो आपको y की वैल्यू दिखाई देगी 2. तो जब x4 मिला है तब y2 मिला है, जब x2 मिला है तब y4 मिला है, और z तो आपके पास पहले से ही रेडी है 0. तो आपको 2 आंसर लिखने पड़ेंगे. कैसे 2 आंसर? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 है, तब y 4 है और z तो 0 है. या तो दूसरा आंसर, आपको दोनों आंसर आपको लिखने पड़ेंगे. x 4 है, तब y 2 है और तब z 0 है. ये आपका फाइनल आंसर. तो एग्जाम के अंदर MCQ में आइदर ये आंसर दिया होगा या तो ये आंसर दिया होगा. ऐसे भी हो सकता है एक ही आंसर दिया हो, लेकिन आपको पर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि विच आंसर इज
करेक्ट. कॉपी डाउन दिस. अब ये स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. उसमें भी पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और दो मैट्रिक्स दिए हैं और उसके बीच में इक्वालिटी की सिंबल है. इसका मतलब उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी अनुरूप घटकों समान है. ओके, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है? ये एक ही एलिमेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड, वो एक सिंगल वन एलिमेंट है. तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. एंड कॉलम कितना है, कॉलम कितना है 1. सो इट इज अ 3x1 मैट्रिक्स. हियर आल्सो रोज कितनी है 1 2 एंड 3 रोज एंड कॉलम इज 1. ओके, ये 1. सो वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. तो ये एक्स वाई जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वो 9 से इक्वल होगा. फिर एक्स प्लस जेड है, वो 5 से इक्वल होगा. एंड वाई प्लस जेड है, वो 7 से इक्वल होगा. अब आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट? सपोज ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है. आइडिया आ रहा है? देखो ये x प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या दी है 5. तो आप x प्लस जेड की जगह इधर 5 रख दोगे तो आपको डायरेक्टली y मिल जाएगा. दिख रहा है ना? ओके, इसी तरह y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 भी इधर रख दिया तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन 1. ओके, y प्लस जेड इन 1 में रख दो. तो अपने पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज 9. y प्लस जेड की जगह आपने रखा है 7 इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7. सो x इज 2. अब x आपका 2 आ गया. अगर इसमें रख देते हैं तो z मिल जाएगा, या तो x प्लस जेड डायरेक्टली इसमें रख दो, जैसा ठीक लगे वैसा करो. x plus z is 5. x is equal to 2 plus z is 5. So z is 5 minus 2 is 3. अब आपको डायरेक्टली z की वैल्यू मिल गई. इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, कुछ भी करके आप आंसर ला सकते. So y plus z is 7. So z is 3. So y plus 3 is 7. So y is 7 minus 3 is 4. स्टूडेंट्स ऐसे जो क्वेश्चंस है वो MCQ में आएंगे आपको. तो MCQ के लिए उसको आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन. आई होप कि समझ में आया होगा. यू कैन डू बाय योर ओन मेथड, नॉट नेसेसरी वॉट एवर आई हैव डन ऑन दिस बोर्ड, सेम यू हैव टू डू. ओके, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. हियर आल्सो द टू मैट्रिसेस आर गिवन टू यू एंड बिटवीन देम, उसके दोनों के बीच में ये इक्वालिटी की सिंबल है, इक्वल लिखा है. तो कैसे सॉल्व करने का अब आपको आइडिया तो आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. सो दिस इज a माइनस b इज इक्वल टू -1. ओके, एंड सी ये ए बी है तो ए बी वाला यही एलिमेंट मैं इसका नीचे लिख देती हूँ, मेरे लिए काम इजी हो जाएगा. 2a माइनस बी इज 0. 2a माइनस बी इज 0. ओके, समझ में आया? ये a माइनस बी इज -1 और ये ए बी वाला है तो ए बी वाला ही मैंने यहाँ देख लिया कि इक्वेशन यहाँ बन रहा है. ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम. और द सेम वे 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर 3c प्लस d. 2a प्लस c एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 30. यहाँ पे ये दो एलिमेंट थोड़े डिफरेंट है, ए और सी है और सी डी है. ओके, नो प्रॉब्लम.
अब आपको ये दो इक्वेशन है, उसमें से अननोन जो एलिमेंट है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। तो आप कैसे फाइंड करोगे? या तो सी हियर तो कोएफिशिएंट तो दोनों के इक्वल हैं, तो हम क्या है, यहाँ पे दोनों की साइन सेम है, मुझे डिफरेंट साइन चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। एक तो ये मेथड आप सब्ट्रैक्ट करके आप फाइंड कर पाओगे, या तो इसमें से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 2a, वो इसमें रख दोगे तो भी चलेगा। फ्रॉम दिस यहाँ पे आप लिख सकते हो b को इस साइड, b इज 2a, ये इसके अंदर रख दोगे तो भी आपको चलेगा। b की जगह आप 2a रख दो, so a minus 2a, that is minus a is minus 1, so a is minus minus कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। वापिस बोलो स्टूडेंट्स, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। a minus b is minus 1, 2a minus b is 0। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट तो इक्वल है ही, लेकिन हमको क्या है, कैंसिल करना है तो ऑपोजिट साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे वापस माइनस करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो a माइनस 2a इज माइनस a, बराबर। ऑपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और बिगर वाले नंबर के साइन लगाते हैं, सो इट इज माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस a, और इधर माइनस 1, सो ये माइनस 1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड a इज 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यह 0 था, तो b की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, b इज 2a और फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। या तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो भी चलेगा, तो दोनों केस में आपका a इज 1 आया, तो अब b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके, कोई भी इक्वेशन में आप b रख दोगे आपको आंसर 100% मिल जाएगा। अब आपको c ढूंढना है, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये थर्ड इक्वेशन में 2, a की जगह 1 प्लस c इज 5, तो c इज 5 माइनस 2 3 2, एंड सो आंसर ऑफ c इज 3। ये 2 है आपका, इस साइड चला जाएगा राइट साइड, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 माइनस 2 एंड दैट इज 3, तो c मिल गया। अब आपको d चाहिए तो d इधर से ढूंढ लेंगे, 3c प्लस d इज 13, c is 3, so 3 into 3 plus d is 13. So from this you will get the value of 3, c, d, 13, 3 3s are 9, 13 minus 9, so d is 4. तो आपको चारों वैल्यू मिल गई, a is 1, b is 2, c is 3 and d is 4. स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन MCQ में पूछते हैं, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now this is question number 9. It is MCQ question and this is the most IMP question. Important questions. Which of the following values of x and y make the following pairs of matrices equal? Here 4 answers are given to you. Value of x and y. What is our question? These two matrices are equal. Here comma is written. बराबर, वहाँ पे इक्वालिटी की सिंबल लिखी नहीं है, उसने उन्होंने वर्ड भी दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमको अपने आप से इसको बीच में इक्वालिटी की सिंबल लगानी है। बराबर, अब हमको पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली आप ऐसे करोगे 3x plus 7 is equal to 0. Remember students, here matrices are equal. It is given to you like this way. ऐसे दिया है कि दोनों इक्वल है, यहाँ इक्वालिटी के सिंबल लगा के दी नहीं है, लेकिन हमको अपने आप से समझना है कि ये दोनों के बीच में इक्वालिटी की सिंबल है, तभी हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल बनाएंगे।
सो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -7. 7 को इस साइड ले जाओगे तो -7 3x. सो x इज -7/3. क्या क्या 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रिज क्रॉस करके वो डिवीजन में चला जाएगा -7/3. तो आपको ऐसा तुरंत ही ऐसा लगेगा इसमें x इज इक्वल टू -7/3. इट इज आंसर में कहीं है ही नहीं. ओके तो यहाँ से कोई जगह -7/3 तो मेरा आंसर है ही नहीं. ओके देन y की वैल्यू देखते हैं. y इज इक्वल टू y-2. ओके और y-2 इज इक्वल टू 5. इसका ये और ये एलिमेंट इक्वल है. सो y की वैल्यू हो जाएगी -2 को इसको ब्रिज क्रॉस करके हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 5 + 2. सो y इज 7. y इक्वल टू 7 तो आपको दिख रहा है यहाँ पे है. x इक्वल टू -7/3 नहीं है. ओके नो प्रॉब्लम. यहाँ पे भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि ये दो वैल्यू आपकी आ जाए यानी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा नहीं. बाकी के दो जो इक्वेशन है उसमें भी आपको ये x या x एंड y की वैल्यू उसमें पुट करके देखने की कि वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, या तो वो दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करके देखने की कि सेम वैल्यू आती है कि नहीं. मैंने दो तरीके बताए स्टूडेंट. आपने x और y की वैल्यू यहाँ पे ढूंढ ली, इससे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. वैसे तो ओके खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या करने का, ये दो वैल्यू है ये जो बाकी वाले जो इक्वेशन बनते हैं उसमें रख के देखने की कि वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट, या तो उसमें से ही आपको y की वैल्यू ढूंढने की और x की वैल्यू ढूंढने की सेम वैल्यू आती है कि नहीं. अब यहाँ तो ये चलेगा y + 7 इज 1 इज 8. सो y इज इक्वल टू 8 - 1 इज 7. सेम वैल्यू आती है बराबर. या तो यहाँ पुट कर दो y इज इक्वल टू 7 तो 7 + 1 इज 8 हो रहा है, यानी ये तो काम खत्म हो गया. व्हाट अबाउट x? x की वैल्यू ये पुट करके यहाँ देखो 4 आता है कि नहीं. एक तरीका वो है x की वैल्यू इधर पुट करके देखो. 2 - 3 × -7/3. 3 कैंसल. 2 - +7 दैट इज 9 और यहाँ क्या है 4 है तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. एक ये तरीका, यहाँ से तो आप लोग x की वैल्यू ढूंढ लो क्या आती है. 3x को इस साइड ले जाओ पॉजिटिव. 2 - 4 सो 3x इज -2 सो x इज -2/3. देखो स्टूडेंट दोनों जगह x की अलग अलग वैल्यू आई. x की अलग अलग वैल्यू आई वो नहीं चलता, सेम वैल्यू आनी चाहिए. ओके सो हियर माय आंसर इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड. बराबर ये मेरा आंसर. मैं देखो ये आंसर y = 7 एंड y x = -2/3 यहाँ है, लेकिन ये आंसर नहीं चलेगा क्योंकि सेम वैल्यू होनी चाहिए. x की जो वेरिएबल है उसकी सेम वैल्यू हर जगह पे होनी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंट वैल्यू x की आई तो हम बोलेंगे हियर वी गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सो द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन. समझ में आया स्टूडेंट? मैं वापस बोलती हूँ, जब तब आप दोनों मैट्रिक्स को जब इक्वल करते हो तब आप वेरिएबल की वैल्यू ढूंढते हैं. ओके इसमें 3x + 7 से आपकी x की वैल्यू आ गई. ये यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई तो आपको क्वेश्चन ख़त्म नहीं कर देने का. बाकी के इस क्वेश्चन में ये जो x और y की वैल्यू आई वो रख के देखने का સેટિસ્ફાય હોતા है, वो સંતોષાય છે, ઇક્વેશનનું સમાધાન કરે છે. आप देख लो बराबर. तो एक तरीका वो है कि ये जो x और y की वैल्यू आई ये दो इक्वेशन में रखो. y + 1 = 8. अगर y = मैं 7 रखती हूँ तो 8 आता है. 7 + 1 8. ओके और यहाँ पे x =
7/3 यहाँ रखने से 4 आता है। एक ये तरीका है, या तो आप क्या करोगे कि यहाँ से भी x की वैल्यू ढूंढ लोगे, यहाँ से भी y की वैल्यू ढूंढ लोगे। पहले ढूंढी और ये वैल्यू दोनों सेम आती है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, सेम नहीं आती है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बराबर। सेम जो वैल्यू आती है उसको ही हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन के लिए, समझे। जो सेम वैल्यू आएगी दोनों इक्वेशन सॉल्व करने में, वेरिएबल की वैल्यू जो सेम आती है वो वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा, डिफरेंट वैल्यू हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इन दिस केस हमने x और y की, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन एंड पुट इन द दिस वन, you are not getting the same answer for एक value of x is -7/3, so solution is not possible. Otherwise find out the value of x and y, the both values are same, then it is the solution, otherwise not possible. Understood? This is the IMP equation. So here we get different values of x. So solution is not possible. आपकी x की कॉमन वैल्यू मिलनी चाहिए, वो ही आपका सॉल्यूशन बनेगा। वेरिएबल की कॉमन वैल्यू चाहिए। अंडरस्टूड? कॉपी डाउन। नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। For what values of x and y are the following matrices are equal? Okay, here written the word equal, ऐसा word लिख के दिया है, इक्वालिटी की सिंबल दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको इक्वल लिखा है। दैट मीन्स हमारे टू मैट्रिसेस आर इक्वल। Equal and therefore the corresponding elements are equal. So 2x plus 1 is equal to x plus 3. Okay. 3y is equal to what? Y square plus 2. 0 is equal to 0. No need to write. Y square minus 5y is equal to minus 6. ये एलिमेंट इक्वल। नाउ फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, है ना, आपको मिल गई ना। 2x, ये x को ब्रिज क्रॉस करवाओ, -x, 3 ये 1 को ब्रिज क्रॉस करवाओ, -1। सो 2x minus x is 1x, that is x. 3 minus 1 is 2. 2x minus 1x is x, so it is a, and 3 minus 1 is 2. So वैल्यू ऑफ x आपको मिल गई। अब y के लिए हमें प्रॉब्लम है, बराबर। यहाँ से y ढूंढो, फिर इस इक्वेशन में रखो, सेटिस्फाई होता है तो चलेगा, या तो दोनों जगह y की वैल्यू ढूंढते। क्या करते हैं देखो, दिस विल y स्क्वायर, इसको 3y को हम ब्रिज क्रॉस कर राइट साइड ले गए, -3y प्लस 2 इज 0। फैक्टर बना दो, 2 यहाँ पे तो 1 है, 2 1 सा 2, so y square minus 2y minus 1y plus 2 equal to 0. So y common, y minus 2 minus 1 common, y minus 2 is 0. माइनस साइन मैंने बाहर निकाली है। y minus 2 into y minus 1 is 0. So आपकी y की दो वैल्यू इधर आई, y equal to 2 and y is equal to 1. So y minus 2 is equal to 0 और y minus 1 is equal to 0. y की मुझे दो वैल्यू दिख रही है, एक तो y is equal to 2 आएगा, या तो y is equal to 1 आएगा। y की मुझे दो वैल्यू दिख रही है। अब आगे जाए, इसमें ये सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ
6 और 1, 6 1 जा 6 के फैक्टर बनाएंगे. कैसे बनेंगे? 2 3 जा 6, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y प्लस 6 is 0. So take common y minus 2 minus 3 common y minus 2 is 0. So from this you will get 2 factor y minus 2 equal to 0 और y minus 3 is 0 और इससे मिलेंगे y equal to 2 और y is equal to 3. क्या मिला? y की दो वैल्यू मिली. यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two factors is 0. या इसका मतलब ये होगा y minus 2 0 होगा या तो y minus 3 0 होगा. और इसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी 2 और यहाँ के 3 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 3. तो आपको दो वैल्यू मिली. यहाँ y की दो वैल्यू मिली 2 and 3. यहाँ y की दो वैल्यू मिली 2 and 1. So what is our question? What values of x and y the following matrices are equal? तो इसमें आपका जो आंसर लिखेंगे तो x की तो फिक्स वैल्यू है 2. x के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फॉर y here we get two value 2 and 1 and here two values 2 and 3. We take the common value. So what is value of y? Common value, it is 2. So I will write y equal to 2. So what is, we will take the common value of y as a solution. We cannot take this one 1 and we cannot take this as 3 as a common value because these two values does not satisfy that these two matrices are equal. अगर ये दो वैल्यू y की 1 और 3 रखोगे तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं दिखेंगे. सपोज y की 1 रखती हूँ तो ये बनेगा 3 बराबर. इसमें तो बन जाएगा y इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ 1 रखूँ तो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 और यहाँ मिला माइनस 6. इक्वल नहीं बनेंगे. बराबर. समझ में आया? तो हमको क्या है उस टाइम पे कॉमन वैल्यू आपको सॉल्यूशन की तरह लेने की, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है कि जो ये सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस आवर आंसर इज x इक्वल टू 2 एंड y इज 2. 3 1 and 3 we can't take. Copy down this sum and this is very good example. So please copy down this. Now this is the question number 10 of your exercise 3.1. The number of all possible matrices of order 3 cross 3. आपको 3 cross 3 के मैट्रिक्स बनाना है 3 cross 3 का. That means what? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is your 3 cross 3 matrices. And you know that how many elements are here? 3 cross 3. That means 9 elements. यहाँ कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है. 9 सभ्य इसमें है. ओके. सो 9 एलिमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है विथ ईच एंट्री. यानी ये 9 एंट्री बोलते हैं. इसको एंट्री बोला है. विथ ईच एंट्री बाय 0 और 1. ओके. तो तुम्हारी फर्स्ट एंट्री है A11 को कितनी तरह से भर सकोगे? 0 और 1. या तो 0 रख सकोगे या तो 1 रख सकोगे. यानी 2 वेज में भर सकोगे. नंबर ऑफ वेज. ओके. इसी तरह तो सेकेंड एंट्री A12, इसको भी कितने रूप में भर सकोगे? 0 या 1. यानी 0 और 1 यानी 2 वेज में. इसी तरह ऑल एंट्रीज आपकी 3 3 तक सभी एंट्री कितने वेज में आप भर पाओगे? 2 2. सभी एंट्रीज 2 2 वेज में भर पाओगे, है ना? उसने क्या बोला है? आइदर 0 लो या 1 लो. ओके. तो हमें पता तो चल जाएगा कि हर एक एंट्री 2 प्रकार से भरी जाएगी. हर एक एलिमेंट 2 रीत से जाएगा. या तो 0 आएगा या 1 आएगा. बराबर. अब एंट्री कितनी है?
तो ये सम से पता चल गई 3 क्रॉस 3 मीन्स 9 एंट्रीज है। ओके, तो हमने 11th में वो एक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट वाज दैट? क्या था वो? गणतरीનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। काउंटिंग प्रिंसिपल क्या था कि इफ वन थिंग यू कैन डू बाय m ways followed by the other thing that you can do by n ways, then the total number of ways to this work is mn। ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि कोई एक थिंग हम m प्रकार से कर सकते हैं, उसके फॉलोड बाय दूसरी थिंग n प्रकार से कर सकते हैं, उसके फॉलोड बाय तीसरी थिंग p प्रकार से कर सकते हैं। तो हमको यही का थिंग करने के लिए जो क्रम में ऑर्डर में करने के लिए कुल जो प्रकार है वो कितने होंगे, तो कि m इंटू n इंटू p हम मल्टीप्लाई करते थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वेज, ये सभी एंट्री भरने का, इससे विथ ईच एंट्री तो हमारे कितने प्रकार से भर जाएगी, तो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 9 टाइम्स, ये 2 कितना है 9 टाइम्स, तो कितना हुआ 2 raised to 9 एंड दैट इज 512। ये भी दो प्रकार से, ये भी दो प्रकार से, ये भी दो प्रकार से, ये भी दो, ये दो, यानी हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि सबको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, दैट इज 2 raised to 9 यानी 512। योर आंसर इज 512। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 3x3 मैट्रिक्स बोला है, आपको पूछा होगा कि 2x2 बनाओ, तो क्या होगा, 4 एंट्री होगी, हर एक 2 2 2 2 2 2 2 4 16 आंसर आ जाएगा। अगर आपको 4x4 बनाना है तो टोटल एंट्री कितनी होगी 16, तो 2 2 2 2 कितने बार लेने पड़ेंगे 16 टाइम्स। सो क्या आंसर आएगा 2 raised to 16। वहाँ हम कैलकुलेशन करने नहीं बैठ रहे, वहाँ 2 raised to 16, यहाँ पे आएगा 2 raised to 9। ओके, इसी तरह अगर 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स होता तो क्या एंट्री होती, 5 5 25, तो 2 raised to 5। अगर वही आपको क्वेश्चन में दिया होता 3 क्रॉस 2 तो क्या होता 6 एंट्री होती, तो क्या बनता 2 raised to 6, हर एक एंट्री 6 प्रकार से हम भरते। अंडरस्टूड? सो योर आंसर इज 2 raised to 9 यानी 512। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सम सॉल्व करके आपको बताऊंगी। और दूसरा स्टूडेंट, अभी मैं ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, और ये सब है, उसके रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस है वो कम्युनिटी पोस्ट में रखूँगी। आज आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और जहाँ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट कि जिसको रियली ज़रूरत है जो वो उसको आप शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट बच्चों को इसका लाभ मिल सके और मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय, बाय बाय।